I'm here in a Ghana booth, and Ghana people are very lovely people because I have a colleague from Ghana. They are very nice. Always I praise them because they are very clean and soft heart. How are you? I'm fine, thank you. What's for your good asking. name? Majid Al Hassan. MashaAllah, MashaAllah. Majid. Mr. Majid, how long you been here in Kuwait? 3 years. 3 years. So you know very well Kuwait, huh? Yes. Okay. Mr. Majid, what you have today, and this is the first question. If someone wanna visit Ghana, why? Okay. Yeah, thank you very much. Ghana is located in West Africa. And then it is one of the reasons why you want to visit Ghana is because it is located in the center of the world. There's this thing that people learn, the equator. Oh, It okay, passes so through center of Okay, the okay, world. okay, okay. And then So how's the it weather has- there? Yeah, and it has a lot of historical sites. So if you are somebody who is into history about earlier trade, this European contact with Africa or West Africa, there you will see those rich traditional heritage. There are also the buildings to show it. There are castle, forts, and then there are also nature, flora and fauna. If you want to see beautiful rainforest, if you want to go to the see safari, everything is there. And the good. people are wonderful people. What you have special today? Special. Yes. So today we have things which shows culture, like the footwear. This is very hard. You know, Yeah. it's hard. You know. So it's easy to walk. Yeah, it's very easy and flexible to work in. And then these are cloth. Okay. It's like the kente, but we've designed it. It's a It's a school school bag, huh? Yeah, so you can hang it like over. Nice, So beautiful. it's a nice color. And this is something for food. Uh-huh. It's called fufu. Okay. Yeah, so it's Made by banana. Huh? Yeah. So it's plantain. It's like banana. Then you use it to prepare. Then we also have some jewelry. Okay. Jewelry. Nice. So this is handmade, right? Handmade. Yeah. And then this is also articraft. It means that all hands can come together. Right. And then we can hold Okay. everything in order. So these are traditional dresses okay. and hats. MashaAllah. Very good, Mr. Majid. All Nice right. to meet you. Thank you. Nice Thank you. जी इस वक्त मेरे साथ परमानेंट शख्सियत पाकिस्तानी कम्युनिटी की हमेशा कार खैर में भी पेश होते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऐसे कोई भी इवेंट हो हमेशा फ्रंट लाइनर होते हैं। हाफिज शबीर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इनका नाम ही काफ़ी है। अब साहब इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? ये कैसा इक़दाम है कुवैत गवर्नमेंट का? पहले भी ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसे इवेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? स्पेशली पाकिस्तानी बूथ आपने देखा, विज़िट किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की दुनिया में सबसे जो बड़ा मिलने जुलने का और एक दूसरे के करीब होने का वो है एक दूसरे के कल्चर को समझने का। और कल्चर जो है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं बहुत हद तक। आप ड्रेसिंग से करके देख लें, फूड तक सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्टैंडर्ड अपने आप में बना रही हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का कल्चर अपने इलाके में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, उसकी वजह ये है कि हमारा सिंध का एक बड़ा ब्यूटीफुल कल्चर है, बलूचिस्तान का अपना है, ऊपर नार्दर्न इलाकों का अपना है, एबटाबाद कर लें, उससे आगे चले जाएं तो हर इलाके का अपने हर रंग इलाके का आज़ाद कश्मीर है, उसका देख लें, पंजाब का है। तो जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें दी हैं समुंदर से, दरिया से, सहरा तक, और उसके बाद हरियाली और पहाड़ और वादियाँ, ये यकीन जाने हम गिने भी तो गिन नहीं सकते। फिर उनमें जो डिस्प्ले जो लोगों का कल्चर है वो सारे को डिस्प्ले किया जाए ना, तो हमें सारी जगह तो हमें ही चाहिए सिर्फ पाकिस्तान को। सही है। तो हमारा इतना रिच कल्चर है और माशाल्लाह इसका बड़ा बेनिफिट है जब आप इस तरह डिस्प्ले देते हैं। ये इमेज बिल्डिंग का काम करता है। राइट। और जिस कंट्री के साथ आप मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में हैं, फिर उन्हें भी इस चीज़ की खुशी होती है भाई हमारे काल पे ये आए हैं, इन्होंने अपना सही तरीके से प्रोजेक्शन की है और एक सोर्स ऑफ कह लें कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है करने का तरीका है। और दूसरा जिसको कहते हैं ना कि एक इमेज बिल्ड करना आपस में, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं पूछ भी रहा था कि ये सारा कैसे मैनेज किया, तो कह रहे थे सुबह भी आए, बारिश आई, फिर उठाया, फिर रात को भी आए, तो सारा दिन आँख में चोरी लगने के बावजूद भी अभी तक भी माशाल्लाह चमक दमक रहा है हमारा स्टॉल। देखा जाए तो लोगों के 20% भी डिस्प्ले नहीं है कंपैरेटिवली। पाकिस्तान का जो डिस्प्ले है वो इतना बड़ा और इतना बेहतरीन तरीके से। अफसर जैसे हमारे एम्बेसडर साहब भी नए हैं और वेलफेयर अताशी साहब भी न्यूली आए हैं इधर कुवैत, और फिर ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना
कैसा मैसेज है दूसरी कम्युनिटीज़ को, और एम्बेसी के बारे में क्या? मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो हमारी कम्युनिटी इतनी एक्टिव है कि ये ख़ुद भी अब इतनी ट्रेंड हो चुकी है, कोई इवेंट होता है सारे जाते हैं, किसी किस्म का कोई प्रोग्राम होता है लोग सारे आते हैं रिगार्डलेस पॉलिटिकल रिलीजियस मामलात को देखते हुए। और सफारताना पाकिस्तान के साथ मिलकर हर किस्म का काम कम्युनिटी अपनी तरफ से भरपूर तरीके से कर रही है। और एक बड़ी खुश आइंद बात है कि डिप्लोमेट्स के साथ आपकी सारी कम्युनिटी जो है वो कनेक्टेड है जी। और कोई आए या जाए या कोई नए हों या पुराने हों, गाइडलाइन भी मुहैया करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, अपनी एनर्जी भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं हस्ब ज़रूरत, एज़ पर प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। मैं भी आज टीवी पे इंटरव्यू में था तो मैंने यही बात की है कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी और उसके में जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने सारे मसाइल ख़ुद ही तो हल करते हैं, सही, मिल के सफारताना पाकिस्तान के सही साथ। है। तो ये एक बड़े ट्रेंड कौम बन चुकी है हमारी। राइट। तो अल्लाह करे हमारे मामला तो और भी दूसरे सारे हल हो जाएँ, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है जी। I'm here in Philippine embassy booth, very next to Pakistani embassy. Very rich culture, very good people with beautiful heart, always smiley face. Whenever you talk to them, always smiling. What's your good name? I'm She. What's your good name? Adil. Your good name? Chell. You all part of embassy? Yes. Okay. Can you tell us about what you have today? Okay, this is first question. Second question, if someone want to visit Philippines, why? Okay. The first question is this. You can see these are our. Can you show please this one? Food in the Philippines. We have dessert like it's written there. Buko juice, mango juice, and our famous halo halo. These are some of our landmarks in Philippines. Okay. So, Vigan, Metromuros, and Bacol. Okay. Yeah. Okay. What is this actually? Is handmade? Handmade, huh? Handmade bags. Okay. Handcrafted. This is still exists there. Still people using. Yes, of course. Yes. You know now is ready-made. You know people like brand stuff, Gucci, Chanel. You know people are love brands. Yeah. This handicraft, how people love. This is authentic from the Philippines. Yeah. We have a lot of colleagues, Filipino colleagues work with us. We know much stuff about Philippines. But still question is remain. People want to go Philippines. Why? I think people want to go to the Philippines because of there are many beaches. We have plenty of beaches in the Philippines like Boracay, the Palawan, which is the so-called last frontier in the El Nido. And I think the hospitality of the Yes. Filipinos. What about food? About the food, there are also many dishes like adobos, sinigang, that are really authentic Filipino dishes. What you know about Pakistan? Pakistan. Actually, I've never been to Pakistan, but if I will be given a chance, I would love to go. ਇਸ ਇਵੈਂਟ में ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ राना साहब बड़ी प्यारी शख्सियत दिल के प्यारे माशाल्लाह इनकी आवाज़ कुमार सानू कुछ भी नहीं यकीन करो Thank you. और ये इनके साथ इनकी माशाल्लाह इनकी एहलिया भी इनके साथ हैं Alka Yagnik. अलका याग्निक और आज हम इनसे वो स्पेशल दिल बनवाएंगे जो ये टिकटॉक पे बनाती हैं यकीन करें कि मैं बड़ी कोशिश की थी मेरे को नहीं बने आज तक अच्छा जी. राना साहब वेलकम टू इवेंट कैसा लगा आपको इवेंट थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी हमारे देखने वाले बहन भाई हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। इमरान भाई इवेंट के बारे में कहें तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से और वोमेन जो हमारे माशाल्लाह कल्चर की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त स्टॉल अपना लगाया गया, देखा हमने हमारी चीज़ें और आप सब ने मिल के उसको प्रमोट किया, अच्छा लगता है। हम कल भी रात को मैं आया था इधर। अच्छा माशाल्लाह आपकी तो बहुत कोशिश है अपने पाकिस्तान के लिए, हर जगह पे आप माशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं हर चीज़ को और ये भी आप सब ने मिलजुल के हम सब ने ज़रूर करना है हर जगह में जहाँ भी हमें मौका मिले। क्या कहना चाहेंगी इस इवेंट के हवाले से? यही कि फैमिली के लिए गैदरिंग भी हो जाती है और फिर कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है, तो
बहुत औसम है और आपने एक खुशखबरी भी सुना दी है तो हमारे लिए तो डबल हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जाते जाते वो एक दफ़ा इनके लिए वो दिल बना दें ज़रा। जी बनाए देखो जी, आज मानता जी, मेरे को नहीं मानता। ट्राई करेगा करो नहीं मानता ते भाभी नु मेरा दिल कर है, देखो मेरा दिल कर है, देखो है मेरा दिल। कुमार सोनू की आवाज़ में एक सोना जगाना, हाँ? कुमार सोनू की आवाज़। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से मुझे यार। थैंक यू भाई, थैंक यू जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी, इस वक्त मेरे साथ ज़रा खान मौजूद हैं। ज़रा खान किसी नाम के मोहताज नहीं, आपने इनको लातादाद वीडियोज़ में, लातादाद होटल्स में देखा होगा। फूड ब्लॉगर्स हैं, वेरी फेमस पाकिस्तानी, और इनकी वजह से हमें पता लगता है कि किस होटल का खाना कैसा है। और ये इनकी क्वालिटी ये है कि रियल में बताते हैं कि भाई इसका खाना अच्छा है, इसका खाना नहीं अच्छा है। कहीं तो होते हैं खा के आते हैं, कहते नहीं यार सारे खाने ठीक हैं, लेकिन ये क्वालिटी इनकी। ज़रक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइमिंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और बाकी के व्यूअर्स को भी। यस ज़रक साहब, मैं आपको देख रहा हूँ इस इवेंट में, और जैसे आप इंटरव्यू हुए, क्योंकि आप एक व्लॉगर भी हैं और एक फूड व्लॉगर भी हैं, तो आप अपनी वीडियोस बना रहे थे। आपने कैसा इस इवेंट को कैसा पाया? क्या मैसेज कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से पाकिस्तानी हैं हम, आपने कैसा देखा इस इवेंट को? देखिए अव्वल तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जो परफॉर्मेंसेज हुई हैं वो मैं उस तरह से एंजॉय नहीं कर सका, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में देखी हैं तो दे वर रियली इंप्रेसिव। मुझे अच्छा लगा है कि कुछ अच्छे तरीके से किसी चीज़ को करने की कोशिश की गई है। और ओवरऑल माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, खाने के स्टॉल्स हैं, अपने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, और जहाँ बाकी के 30-40 मुल्क हैं वहाँ पे अंदर पाकिस्तान भी अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे आप किसी भी होटल में जाते हैं और आप जब खाने के बाद उसको रेट करते हैं, इस इवेंट को कहाँ रेट कर रहे हैं, और कुछ सजेशन हो कि हाँ ऐसे हो सकता है, कोई इम्प्रोवाइजेशन, कोई? देखिए इवेंट ओवरऑल तो बहुत अच्छा कंडक्ट किया गया, दैट्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जहाँ पे सजेशंस की बात आती है वहाँ पे बंदा अपना कोई सजेशन दे सकता है। तो मैं जहाँ पे पाकिस्तानी बूथ है वो मुझे कुछ लगा कि वो बहुत पीछे हट के है, उसको थोड़ा सा और करीब होना चाहिए था। जितनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की हो सकती है उतनी नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कुछ ज़्यादा चीज़ें अंदर इन्वॉल्व करके उसको किया जा सकता था। और देखिए जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जो बंदा सामने बूथ पे खड़ा हुआ होता है वो आपका सफ़ीर होता है उस वक्त। तो कोई ऐसा सफ़ीर होना चाहिए आगे जाके इवेंट्स में कि वो आपके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है वो बेस्ट से बेस्ट हो। वो आप किसी ऐसे को खड़ा करे कि कोई आता जाता कोई इंग्लिश बोलने वाला, हत्ता कि कोई अरबी बोलने वाला के साथ वो अरबी भी बोल ले और उसको वो पाकिस्तान के बारे में पूरा डेप्थ में बताए। तो ये एक सजेशन है, क्योंकि अपने हैं, अपनों को बंदा सजेशंस दे सकता है। बिल्कुल ठीक। आपके जो सजेशन, उसमें एक जो पॉइंट है ना, आपने कहा कि हमारा जो बूथ है वो बिल्कुल पीछे है। मेरा पहला क्वेश्चन यही था ताशी साहब से, वो कहते हैं यहाँ पर ना एक्चुअली रफल ड्रा हुआ है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोई 21 के करीब या 25 बूथ हैं, तो उनमें से आपने एक नंबर चूज़ करना था, तो बदकिस्मती से हमारा जो नंबर आया वो पीछे आया। नहीं देखिए फिर वो जस्टिफाइबल हो जाता है। लेकिन देखिए मैं बचपन से इधर हूँ, 30-32 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो मैं जब भी यहाँ पे देखता हूँ कि पाकिस्तानी कोई इस तरह से इवेंट होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ में ना लैग कर रहे होते हैं। और मेरी अपने सफ़ीर साहब भी, पिछले सफ़ीर साहब के साथ भी इन चीज़ों के बारे में 1-2 दफ़ा बात हुई थी। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अभी जो नए आए हैं होपफुली वो इस चीज़ को बहुत आगे अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये सजेशन जो है वो अवाने बाला तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। आई एम हियर राइट नाउ इन श्रीलंकन booth and representative from Sri Lankan Embassy. Hello, how are you? Hello, I'm doing good. What's your good name? I'm Anushka. Thanks for having me here. Thank you for timing. Just quickly, just want to know about this exhibition. What you say about this type of exhibition, and in future you want to be see? Yeah. Thanks for giving me the opportunity. First, I will tell you Ayubowan. It means we are wishing long life to you. And this exhibition is actually this is a good opportunity for all the embassies and all the countries to share their cultural values and what is their heritage, what is their values, and whatever the things they have, what is the uniqueness among all the countries, and we can share
share our, we can build up our relationship as well through this exhibition. This is a good opportunity, and we will we hope to continue our participation in next year as well. Actually, Yes. yeah. I've been here more than 20 years. I have a lot of Sri Lankan colleagues working with me. I know very well about Sri Lankan rich culture, good peoples, Exactly. bright heart, always smiling on their face. Yeah. And we just want to know about what you have today, what you brought on your booth. Yeah. Can you quickly? Yeah, I will Can you go please come and quickly. yes. And this is our cultural dances. This is it's kind of a symbol, Candian dances from hill country, and this is our traditional drums. Drum, We okay. have unique drum beats there, and this is a traditional mask. This And one wearing on head, right? Yeah, for the head, like this, right? Okay. For the Candian dances, and this is a brass crafts. All these things are handmade equipments, right? So this is a wooden craft, and also there are some this is Coconut water, huh? yeah, it's king coconut drink. coconut, Yeah, okay. yeah, made in Sri Lanka, and there's a fruit drinks as well. So we This have is a very some specialty spice. tea for Sri Lanka, Yeah, no? this is Ceylon tea. Okay, Ceylon tea. This yeah, is Ceylon tea. Yeah. See, you the can show whole this. world knows yeah, Sri Sri Lanka Lanka, and it's especially, like yes. Ceylon tea. Yes. Yeah, and especially there are some handmade clothes. Actually, this is called Oh, this batik. is handmade, huh? Yeah, handmade. This is called batik, and this is called handloom. They use the sewing machines at that they stitch the things and Right. yeah, handmade things, and there are some cane items also. This is also Those are handmade, also right? handmade. Yeah, Mashallah. yeah. Still using there? Still people using this? Now in these days they are using these things to decorate homes, like for the interior designs, and in large scale hotels they Very nice. try to showcase our tradition through this. This is a winnowing fan, and we have cane works Very also. nice. Really, you have Yeah. rich culture. Yeah. Okay. And also you can see our yes. heritage there. We have, I hope you know that we have a history more than 2,500 Yes, years yes, ago. yes. This is called Moonstone, and this symbols shows the prosperity of our culture. This looks It's a like house- flower, right? Flower, yeah, it's lotus flower is flower, there. okay. Yeah, this is the Moonstone. In ancient period, our kings they established, and our okay. people, Sri Lankans, they made these things. Okay. Yeah, Very quick and last question. If someone want to go visit Sri Lanka, yeah. why? Sri Lanka, yeah, it's an amazing country in 2-3 words, and you can experience different cultures within a short period, and different culture and different values within a short period and within short distance, right? And you can experience hospitality and nice smiles there, and especially food. Food, Unique yes, food, very yeah, special. yeah. Did you visit Pakistani booth? Yeah, sure. What do you say about that? Yeah, I have noticed that they were very colorful. Materials means that the very artistic materials there, and the traditional and very colorful that clothes, and especially clothes. Yeah, Yes, I yes. noticed it, Noticed it. and they are very very kind for us, and hospitality is also there. Yeah. Thank you very much. Thank you for timing. Thanks for giving Thank this opportunity again. Thank you. अच्छा, अभी मेरे को मैडम बता रही थी ये जो मेरे बैक साइड पे बना है, ये आपने बनाया है? या मैं बनाया। ये किस मटेरियल से बना है? ये मटेरियल पिल्लिन बोलता है अरबी, और स्टेरोफोम इंग्लिश। फोम जो है? फोम। बाद में उसमें वो गिरा क्या मालूम में गिरा, वो कशप का बन होने का गिरा, उसमें ऊपर लगा के वो दूसरा वो डस्ट पाउडर है ना वो कशप का, वो डाल के स्मोक लगाएगा बस। अच्छा, इसके ऊपर जा सकते हैं हम लोग? हाँ, जा सकता है ना। इजी है ये? हाँ, टूट easy नहीं है। सकता? हाँ, नहीं। ये देखो जी, ये है ना कशप भी है, ये भी कशप भी है, पिल्लिन स्टेरोफोम। अच्छा, ये स्टेरोफोम, ठीक। स्टेरोफोम। हाँ। यस्टरडे ना, कल आपका वो लेके आ रहा था, हाँ। तो मैं क्या इतना हैवी कैसे उठाएगा? लेकिन वो बोलता है इस फोम। No. Outside, inside. पिलर आल्सो, सी? Yeah. All pilli, styrofoam. That's really amazing art. Yeah. Really. Thank you very much. Okay. Thank you. हम करते हैं वाइंड अप। हमने सुबह से लेकर शाम हो गई है,
ऑलमोस्ट 6 से ज़्यादा आवर्स हो गए हैं मुझे और सामा भाई को कवरेज करते हुए इस खूबसूरत इवेंट को, और जहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी अपना बूथ लगाया, बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ ने भी यहाँ पार्टिसिपेशन की, रिप्रेजेंट किया अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। मौका दिया कोई गवर्नमेंट ने, यहाँ की कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उन्होंने, और यहाँ पर पाकिस्तानी स्कूल के बच्चे उन्होंने परफॉर्म किया। उसामा भाई क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, कैसा आपको ये इवेंट लगा और क्या मैसेज जाता है हमारे जो कल्चर जो है उसका इसके यहाँ के लोकल्स को? पहली बात इवेंट बहुत अच्छा था, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पाकिस्तानी होने की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान का बूथ सबसे अच्छा था जिन्होंने इस बूथ को ऑर्गेनाइज़ किया। कितने नंबर देंगे? 11 आउट ऑफ 10। पाकिस्तान का बूथ सबसे अच्छा था। PWF हला पाकिस्तान की टीम, इन सब ने जिस तरीके से इस बूथ को ऑर्गेनाइज़ किया, दैट वाज रियली गुड। और हमारा जो कल्चर यहाँ पे डिस्प्ले किया इन्होंने, हमारे हैंडीक्राफ्ट डिस्प्ले किए, प्लस हमारे जो आर्टिस्ट ने जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया, हमारी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग थी। इट वाज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस। मैं फिर से कहूँगा, मैं पाकिस्तानी होने की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी और काफ़ी लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस देखी। जो सिंगिंग वाला था वो बच्चों का पार्टिसिपेशन, बच्चों की पार्टिसिपेशन और सब, और हमारी परफॉर्मेंस, अगर आप वीडियोस भी अभी आप जब लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस देखते हुए सबसे ज़्यादा लोग हमारी परफॉर्मेंस देख रहे थे। तो कम्युनिटी की सपोर्ट भी बहुत अच्छी थी। कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आई है। हमारी कम्युनिटी काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, और मज़ीद इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए और इस तरह के इवेंट में हमारा साथ दीजिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा ऐसे इवेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। पाकिस्तानी एम्बेसी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मौका दिया पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऐसे इवेंट्स करवाने का। अपना ख्याल रखें, हमेशा की तरह दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।